السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی دعا چینل میں خوش آمدید۔ آئیں اس ویڈیو کو مکمل سنیں، اللہ کی حکمتوں کو پہچانیں۔ تعلقات کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بستیاں مات پڑ رہی ہیں اور دل میں ایک عجیب سی خلش رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں تو سب کچھ ہے مگر آپ کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن رکیے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اکیلا پن، یہ تنہائی دراصل اللہ کا ایک خاص اشارہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ آپ کو سب سے اس لیے الگ کر رہا ہے تاکہ آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر سکے؟ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے شور سے نکال کر تنہائی کی نعمت عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں سنوار سکے، ان کے دلوں کو مضبوط کر سکے اور انہیں وہ حکمت سکھا سکے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبی تھا اور ایک وقت آئے گا جب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اکیلے محسوس کرتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود دنیا میں تنہا ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت وہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ یہی تنہائی دراصل وہ لمحہ ہے جب اللہ ہمیں اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان 5 حکمتوں کو سمجھتے ہیں جو یہ وجہ کریں گی کہ جب اللہ کسی کو سب سے الگ کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے اور یہ تنہائی کیسے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی آپ کے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کا دل کتنی آسانی سے بھٹک جاتا ہے؟ غیر ضروری باتیں، دنیاوی مقابلے، دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرنا یا منفی صحبت میں آ کر ایمان کی روشنی کو دھندلا دینا، یہ سب آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی عطا کرتے ہیں، نہ کسی سزا کے طور پر بلکہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ تعلقات اور کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کے دل کی پاکیزگی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ خود ہی آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کا دل محفوظ رہے اور آپ کا تعلق صرف اسی سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی محبت کو محسوس کریں اور اپنے دل کو اس کے نور سے بھر لیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے وہی دوست جنہیں آپ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو گئے، یا وہ رشتے جن کے بغیر جینے کا تصور بھی مشکل تھا ایک دم ختم ہو گئے؟ اس وقت شاید آپ کو لگا ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ خود کو تنہا، محروم اور کمزور۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہی لوگ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے، آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہے تھے اور وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے تھے؟ میرے عزیزوں، بعض جدائیاں در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ آپ کو گمراہی میں لے جا سکتا ہے، چاہے آپ کو اس وقت یہ تکلیف کیوں نہ لگے۔ یہ تنہائی دراصل ایک نعمت ہے، یہ ایک موقع ہے کہ آپ خود کو بہتر بنا سکیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر سکیں اور اپنے ایمان کو صرف اللہ سے جوڑ سکیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آگے جاری، سائے میں ہوں گے، جن میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اکیلا پن محرومی نہیں
बल्कि अल्लाह के करीब होने का एक सुनहरा मौका है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपसे दूर हो रहा है, तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको अपने खास बंदों में शामिल कर रहा है। वह आपकी तन्हाई को अपनी मोहब्बत, अपनी रहमत और अपने सुकून से भर देना चाहता है। नंबर 2, अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ उसी पर भरोसा करें। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई भी आपकी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझता? आप अपनी परेशानियां दूसरों से बांटते हैं, लेकिन उनके जवाब आपके जख्मों को भर नहीं पाते। तब धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि असली सहारा इंसान नहीं, बल्कि आपका रब है। तन्हाई का एक बड़ा मकसद यही होता है कि इंसान दूसरों पर ज्यादा निर्भर होने के बजाय अल्लाह को अपना वाहिद सहारा बनाए। जब जिंदगी आसान होती है तो हम दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। हम दोस्तों, रिश्तेदारों या दुनियावी आसाइशों पर इन्हिसार करने लगते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमें तन्हाई में डाल देते हैं तो वह सब सहारे एक एक करके हटा दिए जाते हैं। यही वह लम्हा होता है जब हमें एहसास होता है कि जो हमेशा से था, जो कभी नहीं बदला, वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अल्लाह को पूरे दिल से, टूटे हुए दिल के साथ आंसुओं में डूबकर पुकारा। ज्यादातर वही वक्त होता है जब हमारे पास कोई और सहारा बाकी नहीं रहता। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमें वही दरवाजा दिखाई देता है जो कभी बंद नहीं होता, और वह है अल्लाह का दरवाजा। यही तन्हाई हमें अल्लाह पर सच्चा और गहरा भरोसा करना सिखाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह फरमा रहे हों, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यह आयत अल्लाह ताला की रहमत और कुर्बत को जाहिर करती है। वह हमेशा अपने बंदों की पुकार सुनने और उसका जवाब देने के लिए मौजूद है। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मोमिन के दिल को झकझोर देता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह उसके लिए काफी है, तो फिर दुनिया की कोई कमी उसे बेचैन नहीं कर सकती। यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है, इस्लाम हमें तन्हाई का नहीं, बल्कि एक उम्मत बनकर जीने का दर्स देता है। मुसलमानों की ताकत उनके बाहमी भाईचारे में है, उनके एक दूसरे से जुड़े रहने में है। लेकिन कभी कभी अल्लाह कुछ वक्त के लिए इंसान को तन्हाई देता है, ताकि वह अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर सके, अपने दिल को साफ कर सके, और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर लोगों के बीच लौटे। फिर यह तन्हाई क्या है? यह एक रूहानी सफर है, एक अंदरूनी तब्दीली जो आपको मजबूत बनाती है, आपकी शख्सियत को निखारती है और आपको इस काबिल बनाती है कि जब आप वापस आएं तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा पुरज़्म और ज्यादा मजबूत इंसान बनकर लौटें। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ऐसे लम्हे आए जब उन्हें गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ा। गाढ़े हिरा की तन्हाई, जहां वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम मिशन के लिए तैयार किया। मक्का की मुश्किलात के दौरान करीबी साथियों की जुदाई, जब हर तरफ जुल्म था मगर अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। जंग के मैदानों में अकेलापन, जब कई बार ऐसा हुआ कि सबने साथ छोड़ दिया मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत रखा। ताइफ में लोगों की संगदिली, जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से जख्मी कर दिया गया मगर अल्लाह ही थे जिन्होंने आपको तसल्ली दी। ये सब जुदाइयां अल्लाह की तरफ से एक तैयारी थीं, एक इम्तिहान था जो नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम रहनुमा, एक कामिल इंसान और एक मजबूत कायद के तौर पर उभारने के लिए जरूरी था। अगर आज आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, यह हमेशा के लिए नहीं है। यह एक वक्त है, यह अल्लाह की हिकमत है, यह आपको मजबूत बनाने का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। नंबर 3, अल्लाह आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई हो? आपके ख्वाब, आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदें, सब कुछ आपको मंजिल के करीब ले जाने के बावजूद जैसे कहीं रुक सा गया हो।
आप देखते हैं कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप खुद को एक जगह रुका हुआ महसूस करते हैं। यह एक तकलीफदेह एहसास होता है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की देर इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला आपको रोक देते हैं, आपको तन्हाई में डाल देते हैं, क्योंकि वह आपके लिए कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। जो इंतजार आपको बेकार महसूस हो रहा है, वही दरअसल आपके सफर का सबसे अहम मरहला है। सुनो, अल्लाह का इंतजार हिकमत से भरा होता है। क्या आपने तितली के सफर को देखा है? एक लार्वा जो बज़ाहिर सुस्त और कमजोर नजर आता है, जब अपने खोल में कैद होता है तो वह बेबस दिखाई देता है, मगर हकीकत में वह एक हैरत अंगेज तब्दीली के अमल से गुजर रहा होता है। बिलाखिर वह एक खूबसूरत तितली बनकर परवाज करता है। ऐसे ही अल्लाह ताला आपको एक मकाम पर रोककर आपके अंदर तब्दीली ला रहे होते हैं, आपकी शख्सियत को संवार रहे होते हैं, आपके सब्र को मजबूत कर रहे होते हैं और आपको उस नेमत के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। आपको एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर इंतजार के बाद कामयाबी आती है और हर आजमाइश के बाद एक बड़ा इनाम होता है। सोचिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम कौम का रहनुमा बनाया, फिरौन जैसे जालिम के मुकाबले में खड़ा किया और एक नबी के रुतबे पर फैज किया। लेकिन क्या वह बराह रास्त इस मकाम पर पहुंच गए थे? नहीं, उन्हें बरसों तक मिस्र से दूर मदियन में एक चरवाहे की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बज़ाहिर यह एक पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर हकीकत में यही वह तैयारी थी जो उन्हें एक अजीम नबी और रहनुमा बनाने वाली थी। सोचिए, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दबाजी करते, सब्र न करते, तो क्या वह वही ताकत, वही हिकमत और वही बर्दाश्त हासिल कर पाते जो उनके मिशन के लिए जरूरी थी? आपकी जिंदगी में यह वक्त क्यों आया है? अब खुद से सवाल कीजिए। क्या मालूम यही इंतजार का वक्त वह मरहला हो जहां अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हों? क्या मालूम आपकी तन्हाई वह अमल हो जहां अल्लाह आपका ईमान मजबूत कर रहे हों, आपकी सलाहियतों को निखार रहे हों और उन तमाम रुकावटों को हटा रहे हों जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं? सब्र का मतलब यह नहीं कि आप बस बैठे रहें। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करें और इस वक्त को अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं, रूहानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर, ताकि जब वह लम्हा आए, जब अल्लाह आपको आपके मुकद्दर की तरफ बुलाए, तो आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब्र रोशनी है। यह वही रोशनी है जो आपको अल्लाह की हिकमत को समझने, उसकी प्लानिंग पर यकीन रखने और अपने दिल को मजबूत रखने में मदद देती है। याद रखिए, अल्लाह का वक्त बेहतरीन वक्त है। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि तैयारी है। नंबर 4, तन्हाई आपकी नीयत को पाक करती है। कभी कभी तन्हाई बहुत भारी लगती है। खामोशी और अकेलापन जब हर तरफ छा जाता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने भी बेगाने लगने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आप बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। ये लम्हे आपके दिल पर बोझ बन सकते हैं, आपको मायूस कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया था कि सब कुछ मुझसे दूर हो रहा है? लेकिन रुकिए, हो सकता है यह अकेलापन हकीकत में आपके लिए एक तोहफा हो। क्या हो अगर यह तन्हाई दरअसल आपके इरादों को पाक करने के लिए हो? हो सकता है अल्लाह आपको भीड़ से निकालकर आपकी नियतों को खालिज कर रहा हो। यह तन्हाई अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कैसे हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वह उसके लिए काफी है। जब हम लोगों के दरमियान होते हैं तो उनकी राय, मशवरे और तवक्कुआत अक्सर हमारे फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। हम बगैर सोचे समझे दूसरों की खुशनुदी के लिए जीने लगते हैं। कभी तारीफ का लालच, कभी बदनामी का खौफ, कभी किसी का दबाव। यह सब हमारे आमाल की नियतों को आलूदा कर सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको तन्हाई अता करता है तो वह आपको मौका देता है कि आप अपनी नियतों को परखें।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह किसके लिए कर रहा हूं? लोगों की वाह के लिए या सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए? यह वह सवालात हैं जो तन्हाई में ही पैदा होते हैं। और अगर आपका जवाब सिर्फ अल्लाह के लिए बन जाए तो समझ लीजिए कि आप कामयाबी की राह पर हैं। सोचिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी पूरी कौम ने तन्हा कर दिया था क्योंकि वह हक पर डटे रहे। उन्होंने बुतों की परस्तिश से इनकार किया और अल्लाह की वहदानियत पर अटल रहे। उनकी तन्हाई सजा नहीं थी बल्कि उनकी आजमाइश और तैयारी थी। यही वह तन्हाई थी जिसने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बना दिया। अगर कोई भी न देख रहा हो तो क्या आप उसी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेंगे? अगर कोई न जाने तो क्या आप वही सदका करेंगे? अगर कोई न सुने तो क्या आप वही नेक अमल करेंगे? तन्हाई में इंसान की असल नीयत खुलकर सामने आ जाती है। यही वजह है कि अल्लाह कभी कभी हमें अलग कर देता है ताकि हम अपनी नीयतों को परख सकें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए अमल किया अल्लाह उसके अमल को बेवजन कर देगा, और जिसने लोगों को सुनाने के लिए अमल किया अल्लाह उसे रुसवा कर देगा। नंबर 5, ये अल्लाह की खास तैयारी का हिस्सा है। यह अल्लाह की खास हिकमत का हिस्सा है। आप एक मुनफरिद जिम्मेदारी के लिए चुने गए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका रास्ता दूसरों से मुख्तलिफ है? जैसे आपकी जिंदगी का सफर किसी अलग दिशा में जा रहा हो। क्या हो अगर यह तन्हाई दरअसल अल्लाह की खास तरबियत हो? क्या हो अगर अल्लाह आपको एक ऐसे मकाम के लिए तैयार कर रहा हो जहां पहुंचने के लिए यह तन्हाई जरूरी थी? याद रखिए, अल्लाह जब किसी बंदे से बड़ा काम लेना चाहता है तो पहले उसे तन्हाई, सब्र, इखलास और यकीन की मंजिलों से गुजारता है। यही मंजिलें इंसान को आम से खास बनाती हैं, जो आपको एक मुनफरिद और अजीम मकसद के लिए तैयार कर रही हो। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग कर देते हैं। उन्हें वह तन्हाई अता करते हैं जहां उनकी रूह को निखारा जाता है, उनके ईमान को मजबूत किया जाता है, उन्हें आजमाइशों से गुजारा जाता है, उनके इरादों को पाक किया जाता है और उनके दिल को हर गैर जरूरी तल्लुक से आजाद करके सिर्फ अल्लाह से जोड़ दिया जाता है। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को। बचपन में वह अपने वालिद के लाडले थे, मगर भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। फिर उन्हें गुलाम बना दिया गया। फिर एक बड़ी आजमाइश के बाद बेगुनाह होने के बावजूद कैद कर दिया गया। अगर हम जाहिरी नजर से देखें तो ये सब नाइंसाफी लगती है, मगर हकीकत में यह एक तैयारी थी। अल्लाह उन्हें सिर्फ एक बेहतर मकाम के लिए नहीं बल्कि एक पूरी कौम को कहत साली से बचाने के लिए तैयार कर रहे थे। यही पैगाम आपके लिए भी है। शायद अल्लाह आपको अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वह शौर, वह सब्र और वह हिम्मत अता करे जो आपकी आने वाली जिम्मेदारी के लिए जरूरी है। इस वक्त को मायूसी में जाया न करें, बल्कि इसे अपनी रूहानी और जाती तरक्की का मौका बनाएं, ताकि आप अपनी फैमिली और अपने मुआशरे के लिए एक सहारा बन सकें। आपकी आज की आजमाइश, आपकी आज की तन्हाई कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ रुकावटें आ रही हैं या आप तन्हाई में डाल दिए गए हैं, तो घबराइए नहीं। ये अल्लाह का इनकार नहीं बल्कि उसका खास इंतखाब है। आपकी तकदीर आम लोगों जैसी नहीं, आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। इस फर पर सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों को निखारने में लग जाएं। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा आप अपनी कहानी के असबाब को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये अल्फाज दिल से महसूस हो रहे हैं तो अपने दिल में एक दुआ मांगिए, क्या अल्लाह मेरे ईमान को मजबूत कर दे और मुझे वह बना दे जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ था। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट्स में सिर्फ आमीन लिखकर उन सब लोगों के लिए दुआ करें जो आज इसी सफर से गुजर रहे हैं। शायद आपकी एक दुआ किसी और के दिल का सहारा बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको सब्र, इस्तिकामत और कामयाबी अता फरमाए।